اب اسی طرح اگر کسی کو ہم پکڑیں گے, انڈیا میں ہم رہتے ہیں, یاد رکھو کسی کو پکڑا اور دہلی میں کہا کچھ لڑکیاں آئے گونز کہا بھائی ایسے گن رکھا, آپ بولو یہ کفری کا ورنہ میں ماروں گا, کیا کرے گا؟ حرام ہے نا وہ, کیا کرے گا؟ کرنا ہے. تو سچویشن ایسے ہوتی ہے, کب کیا ہوگا یو نیور نو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے ایسی سچویشن ہوگی, تو اس لیے آیا دی ہمیں, بولا تب کرو, مجبوری ہوگی جب کر لو, ٹھیک ہے. اور اس میں ہر ایک جو آپ نے بتایا اس کو کیا کہتے ہیں, اگر کسی کو زبردستی کیا جائے گا دوسرے کو, ہم لاسٹ میں کریں گے, لاسٹ میں کریں گے, لاسٹ میں میں بتاؤں. فَمَنِ جو میں نے کہا, جو اگر کیا ہے مجبوری ہوگی, اور اس میں کسی کو دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر مجبوری میں ہے کر سکتے, ہر ایک سکول آف تھاٹ کوئی ہے. اب ہیں ہمارے ہم واپس, اب جو ہمیں ریئل میں تھا یہاں تک ٹھیک تھا, تو تبھی یہ فائدہ مند ہوگا جب ہم یہ اصول پہلے سمجھیں گے. اب دیکھو, اب ایک لیمن مسلم جو ہے, عام مسلمان, وہ کیا کرے ان سچ جو معاملہ ایسے مسئلے ان میں کیا کرے گا, وہ کس کے پاس جائے گا, کیا کرے گا؟ مطلب فار ایگزامپل ہمیں کریڈٹ کارڈ, ہوم لون, فائنینشیل ایسے ایشوز, تو ایک کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے حلال ہے, دوسرے کے پاس جاتا ہے یہ حرام ہے. یہ ہمیں پتہ ہے, کیا کوئی بتاتا ہے ایک ہی چیز نہیں حرام ہے؟ ان معاملوں میں اگر آپ گھر بیٹھے یوٹیوب دیکھو گے اور اپنے ایریا میں ہی دیکھو گے, آپ کو ملیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, جب اب مارکیٹ میں دونوں مل گئے نا حلال حرام, ہم جاتے ہیں جس کو ضرورت ہے, اب مجھے کریڈٹ کارڈ ضرورت سپوز ہے, میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں حلال حرام ہے کیا ہے, مجھے ہوم لون چاہیے, مجھے گاڑی کو فائنینس چاہیے, تو مارکیٹ میں دونوں اویلیبل ہیں حلال حرام. ایسے لگتا ہے ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, جو مجھے اچھا لگے گا وہی اٹھاؤں گا. یہ اب حالت ہو گئی, ٹھیک ہے. وہی شاپنگ کے لیے, شاپنگ میں ہم کیا اٹھاتے ہیں جو پسند ہے. اب دیکھو خود ہی دیکھو, ہر ایک چیز اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, میں اسٹوڈنٹ, ہم اسٹوڈنٹ کیسے پھنس جاتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. تو یہی سچویشن ہے سب سے پہلے, ایزی بنانا. کسی نے اس نے ہمیں اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا فلاں نے حلال کہا فلاں نے حرام کہا, وہ ایزی ہے, بٹ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں, اب جو ہمیں پسند ہے وہ لے لو, ٹھیک ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم فتویٰ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں کیا پسند ہے لے لو, بات ختم, ٹھیک ہے. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ ہم جاتے ہیں نا شاپنگ, ہم فتویٰ لیتے ہیں, تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں دو چیزیں ہیں, تبھی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ایک ہی چیز ہے تو پکڑنا ہے, شاپنگ نہیں ہے, تو اس لیے میں نے ورڈ شاپنگ استعمال کیا. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ ہاں, یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری غلطی ہے. تو کیسے, آپ دیکھو خود ہی, اللہ رحم کرے, اگر ہم بیمار پڑیں گے, ہماری اولاد بیمار پڑے گی, ٹھیک ہے, آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کیا ایم بی بی ایس والے کے پاس جاؤ گے؟ ایمانداری سے بتاؤ, آج کے دور میں نا, آج کے دور میں ٹرمینالوجی ٹھیک, آج کیا ایک ایم بی بی ایس والے کے پاس جاؤ گے؟ یا آج کل تو کوئی ایم بی بی ایس کوئی پاس جاتا ہی نہیں ہے, میرا تجربہ ہے, ایم ڈی ڈی ایم ہونا چاہیے. ہاں, یہ بات سچ ہے. اگر آپ ابھی دیکھو بچوں کا ڈاکٹر ایم بی بی ایس, جاؤ گے؟ کیونکہ میرڈ ہے نا سارے, اس وجہ سے خود کچھ ہے چلے گا, بچہ ہے ایم بی بی ایس, نو, مطلب ایم بی بی ایس کاؤنٹ ہی نہیں ہے. ایم بی بی ایس مینز بیچلرز, بس گریجویشن, ویری گڈ. تو کہاں جائیں گے؟ میں کشمیر کی بات کروں, ہم مت کہو میں امریکہ جاؤں گا. اب دیکھو صرف کشمیر کے باہر نہیں جانا ہے, تو کہاں جاؤ گے؟ سکھ میں جاؤ گے, ایچ او ڈی کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر 4 5 10 ایم بی بی ایس والے بھی ہیں, ایم ڈی والے ہیں, ڈی ایم والے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں گے مل کے کیا کرنا ہے, اس کو یہ بیماری ہے کہ نہیں, وہ آپ کو بھی سیٹسفائی ہو جائے گا, ہاں انہوں نے کہا یہ ہے تو یہ دوائی کھانی ہے. پھر وہ اثر کرے نہ کرے, مگر آپ کو کیا ہے سیٹسفیکشن, ٹھیک ہے. مجھے بتاؤ, جب ہمیں فتویٰ چاہیے, دین ہم نے اتنا سستا بنایا, ہم جاتے ہیں گریجویشن والے کے پاس, کوئی بھی ہو, قاسمی ہو, اہل حدیث ہو, اور کیا ہے وہ جو ایجپٹ سے, آپ کہاں سے ہو, آپ کو مدنی ہو, آپ دوسرا کہاں سے, مجھے نہیں پتا ہے, نہیں مطلب مکہ والوں کو کیا بولتے ہیں, مکی, نہیں آپ لوگ میں نے آج تک مدنی سنا نا, اس وجہ سے کنفیوژن. جو بھی سعودی جا رہا ہے پڑھنے, اس کو تو مدنی, یہاں کے لوگوں کو مدنی. ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہاں کے لوگوں کو مدنی. اگر کوئی مکہ سے, اچھا ٹھیک ہے, وہ پتہ ہے, وہ مکی پتہ ہے, مجھے لگا یہاں میں نے, اچھا ٹھیک ہے. تو جو بھی ہے ازہری, فارغ ایجپٹ سے, تو مطلب یہ ہے
अगर ये मैं तालिब इल्म हूँ, आप भी उस हिसाब से हम सोच रहे हैं, आपस में मशवरा कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ बीमारी के लिए MBBS वाले के पास जाते भी नहीं हो, वो बहुत टॉपर था नंबर 1, फिर भी नहीं जाओगे, किसके पास जाएंगे? एक्सपीरियंस के पास। एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे, पहले कहेंगे डिग्री, पहले हम डिग्री देखेंगे, आज की दौर में डिग्री देखेंगे, तो हम इनके पास जाते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है, ये एक चीज़ कहेगा, ये दूसरी चीज़ कहेगा, ये तीसरी चीज़ कहेगा, आप समझ गए? तो क्या करना चाहिए हमें? HOD के पास जाओ, और HOD अकेले नहीं, वो दुकान अलग है, वो भी होना चाहिए इकट्ठे कहीं पे। मतलब HOD अगर दुकान अलग है ना फिर भी मत जाओ, हम प्रेफर क्या करेंगे, क्योंकि वो HOD भी अगर बीमारी खतरनाक होगी वो कहते हैं सिकमज आ जाओ, क्योंकि अब सारे डॉक्टर क्या करेंगे? मशवरा करेंगे। उस बीमारी तक कोई अलग पकड़ता ही नहीं है डॉक्टर, जब उस लेवल की होती है वो कहेगा आप सिकमज आ जाओ, जब थोड़ी सी है तो अलग चलेगा। अब यहाँ पे वो चीज़ें जो वाज़ेह नहीं है हमें, तो इसी को करना है, तो बेहतर किसके पास जाना है? डिपार्टमेंट जाना है, HOD के पास। तो यहाँ पे भी होना चाहिए, हमें फतवा नहीं लेना चाहिए किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास, वो होना चाहिए फतवा काउंसिल के पास। किसके पास? फतवा काउंसिल, यानी जहाँ पे यही MBBS वाले इकट्ठे बैठते हैं और इनका हेड भी है, आप समझ गए? आपस में ये देख के इमेजिन करो, MBBS दिमाग, सारे डॉक्टर आपस में बीमारी का कुछ निकालेंगे। तो अगर ये सारे इकट्ठे बैठेंगे, फिर वो कासमी हो, अहले हदीस हो, कोई हो, इकट्ठे बैठेंगे और अपने वेबसाइट पे रखेंगे इस मसले का ऐसे है, आप समझ गए? तो एक सेटिस्फेक्शन में ये और कम ही हो जाएगा, वरना आप एक ही स्कूल के थॉट को देखोगे, दो राय है तो हो जाएगा, तो किसी की दूसरी राय फिर नहीं बनेगी। ठीक है? अब आप कहोगे मगर यहाँ तो है ही नहीं है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ सपोज अगर काश्मीर है यहाँ पे, तो वैसे ये तो यूपी से है, यहाँ पे आप किसको मानते हो? हैं? हाँ, तो इन शॉर्ट कि होना चाहिए ऐसे। अगर नहीं है, ये किसकी गलती है? फिर ये हमारी ही गलती है। हमें आदत है दूसरों को ब्लेम करना, ये हमारी गलती है। अगर आपके घर में मोहल्ले में पानी नहीं होगा, क्या करोगे? सब निकलेंगे ना। किसके पास जाओगे? गवर्नमेंट के पास। क्यों? हमें दे दो। तो हम लोग इन स्कॉलर्स को पुश क्यों नहीं करते हो, आप ऐसे कर लो और हमें नुकसान से बचाओ? क्योंकि उसके घर में पानी है, गवर्नमेंट जो बंदा हाई ऑफिशियल है उनके घर में पानी है, वो आपके साथ नहीं निकलेगा, उसको खुद पता अपने फतवा में क्या करूं, आप समझ गए? मगर फंस कौन रहा है? आम। तो आम को क्या करना चाहिए? उनको पुश करो भाई, अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे या ऐसे, उसमें आप ये मसले लिखो, कम से कम अगर कोई किसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है तो एक ही राय बनेगी, दो नहीं बनेगी, एक ही बनेगी ना, वरना आप एक ही में देखो अलग अलग है, क्योंकि इंडिविजुअल को जा रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं शॉपिंग जो हम कर रहे हैं वो हमारी ही गलती है, इसको हमने ही स्टार्ट किया। ठीक है? अब सवाल ये है कि अब आपने कहा फतवा काउंसिल, अब यहाँ पे अहले हदीस का एक अलग है, देवबंदी का अलग है, तो हो सकता है 3-4 फतवा काउंसिल अलग अलग ग्रुप के स्कूल, 4 स्कूल ऑफ थॉट 2 मिनट के लिए 4 बन गए 2, मगर गारंटी है 2 ही निकलेंगे। फतवा 4, फतवा 2 ही निकलेंगे, हलाल या हराम। तो कितने निकले? 2। अब ये बंदा इसको मानता है, इसको हलाल है, ये बंदा इसको मानता है, ये क्या है? हराम है। नहीं, इसमें बच गए। फिर भी अगर फतवा काउंसिल है ना तो बच गए। 2 है हाईएस्ट, एतबार ज्यादा है, कोई मसला नहीं है। सही बुखारी की हदीस है 7352, जिसमें है अगर कोई जजमेंट फतवा काउंसिल, अब देखो आप कहोगे इसमें फतवा काउंसिल नहीं, मैं मफहूम कहता हूँ, इजी बात, ये कहता है अगर कोई फतवा काउंसिल कोई जजमेंट दे, मैं मफहूम इसलिए यहाँ फतवा काउंसिल मेहरबानी करी थी ताकि इजी रहे सबको। अगर कोई फतवा काउंसिल कुरान और हदीस देख के अच्छी तरह, फिर उसने उससे अपने खुद ईमानदारी से देखा कि नहीं, ये नहीं कहा कि ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मेरे उलमा ने ये कहा, वो नहीं होना चाहिए, हैं? उसको खुद तहकीक करनी है आपस में, फिर उसको लगा ये सही है तो उन्होंने दिया। अब डे ऑफ जजमेंट में वही सही था, फैसला करेगा अल्लाह, किताब उसकी है, तो उसको लगा ये सही है, इसको 2 मिलेंगे सवाब, डबल। अब ये गलत था, जैसे ये इसको फॉलो कर रहा था, ये गलत था एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, इसको भी सवाब है, इसको अगर सिंगल, इसको डबल, जो भी इसको अगर
सपोज 1 लाख सवा मिल, इसको 2 लाख मिल गए, डबल, इसने मेहनत की थी और गुनाह किसी को नहीं है। बट अगर आप इंडिविजुअल जाओगे तो फिर कितने मसले, आप खुद देखो, तो फिर शॉपिंग बन गई ना। कैसे? आप कहते हो मैं फाइनेंस गाड़ी को नहीं करूँगा, नहीं कट्टर हूँ, मैं नहीं करूँगा, फलानी ने कहा, उसने, उसके दोस्त ने कहा अरे यार मेरे से क्यों आप होते कि मैं तब से मैंने 3 गाड़ियाँ भी खरीदी, मेरा बिजनेस अच्छा हो गया था यार, मैं तो बिजनेस में लॉस हो रहा हूँ, क्यों? इसने ये किया। वो किसको मारा? उसका दोस्त है। तो वो कहता है फलानी है MBBS ग्रेजुएशन वाला, उसको भी ग्रेजुएशन वाला है, तो फिर उनको अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट में भी गड़बड़ हो जाएगा। अब तभी से अंदर आएगा नहीं नहीं मुझे लगता है मैं यही करूँगा, उसका मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपको अब अंदर से डिज़ायर आ रही है, जब ये कर रहा है वो भी बड़ा है, फिर आप गेस करोगे और ज़्यादा रहेगा क्या, नियत पे ये होगा कि नहीं मैं करूँगा। अब जब इसको ऑप्शन है मुझे भी है, तो बेहतर है अगर ऐसे होता। और ऐसी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी हुई थी। सही बुखारी की हदीस है 946, जिसमें जंग अहज़ाब से निकल कर फिर उनको बनी कुरैज़ा जाना था। तो बनी कुरैज़ा में उनको कहा जल्दी, उसको उनको जिब्रील आया कि आप जल्दी से जाओ फलानी जगह। तो फिर इन्होंने कहा जल्दी चलो, हम असर वहीं पढ़ेंगे। अब कहते हैं ना जल्दी चलो, मतलब जल्दी पहुँचो वहाँ पे। अब निकले सारे, कुछ आ रहे थे तो जो इनका असर वहाँ पढ़ेंगे, कुछ ने मीनिंग लिया यहाँ आज असर नहीं पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है। दूसरे ने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जल्दी चलो, अगर वहाँ पहुँचो वहाँ ही असर पढ़ेंगे, इतनी जल्दी करो। तो अगर कोई नीचे तो यहाँ ही पढ़ेंगे, टाइम यहाँ हो गया। तो 2 बन गए ग्रुप, उन्होंने नहीं आप पढ़ो मैं नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने कहा वहाँ पढ़ना है, असर टाइम हुआ था। तो 2 बन गए, तो मोहम्मद ने दोनों को कहा ठीक हो, आप समझ गए। तो ऐसी चीज़ें हुई है और हदीस भी हमें है, कोई दोनों में से फिर क्यों, क्योंकि ये परमानेंट वाला हलाल नहीं है, थोड़ी देर के लिए है। फिर से कहो ये किसके लिए है? थोड़ी देर के, थोड़ी क़यामत के लिए उन्होंने हलाल किया है किसी चीज़ को, ये थोड़ी देर के लिए। अभी देखो, अब यहाँ पे और एक चीज़ आपका हो गए, ये भी है, सच है, मैं खुद विटनेस हूँ इसका, कि यही स्कूल ऑफ थॉट अब हम क्या करेंगे। मैंने 2-4 को लिया है जो एक स्कूल ऑफ थॉट से हैं, तो मैं गेस करूँगा सब यही कह रहे हैं। तो इस स्कूल ऑफ थॉट ने कहा फाइनेंस हराम है। किस स्कूल ऑफ थॉट ने कहा? इसने, मगर खुद कर रहा है, किसी को बताया करो। अच्छी तरह समझना, एक स्कूल ऑफ थॉट ने क्या बोला, फाइनेंस क्या है? हराम है, मगर खुद या कोई अपना खास उसको बोला करो। फिर से आम पब्लिक परेशान, ये क्या हो गया, ये हुआ है, कहते ये तो हराम था ना, खुद क्यों कर रहा है? इमाची ई थी हैं, क्या बोलते हैं बाकी पर वो सही है, क्योंकि ये रूल अप्लाई जनरल नहीं होता है, ये किसको क्या मजबूरियां उस हिसाब से होता है, आप समझ गए। तो फतवा चेंज फिर से होता है, हराम है कैटेगोरिकली, फिर उसको अलग जाना है फतवा काउंसिल के पास, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये है, तो वो देखेंगे आपको गुंजाइश है कि नहीं। तो गुंजाइश कुछ टाइम रहती है, परमानेंट। एक होता है जनरल फतवा, इसमें 2 निकलते हैं, फिर क्या इसको गुंजाइश है इस शख्स को पर्टिकुलरली, तो फिर से चेंज हो गया। तो मैंने देखा जिसने किया उसको गुंजाइश थी, मतलब मैंने अंदर से नहीं देखा उसको गुंजाइश थी, तो ऑब्वियसली वो खुद लोगों को क्या कह रहा है, हराम है, और इस बंदे को बोला जायज। वो कंफ्यूज हो गया, उनको ये बोला मुझे, उन्होंने 10 को बोला ऐसे, तो आम पब्लिक में फिर से। तो ये जैसे ये कि मुर्दा खाना हराम है, किसी भी हम कहेंगे, मगर कोई कहेगा नहीं अगर कहीं सिचुएशन होगी, नहीं फिर भी हराम है, क्यों? अरे यार दूसरी चीजें मिलेगी, भाई को क्यों खाओगे? नहीं अगर भाई मर गया, अगर मैं उसी को खाता, अरे पागल हो गए हो, क्योंकि वो इमेजिन नहीं करता है ऐसी सिचुएशन कभी होगी। तो फिर पहला वाला फतवा क्या है, कभी नहीं खा सकते हो, अगर मजबूरी हो, क्यों? अरे मजबूरी हो, भाई को क्यों खाओगे, जहां जा रहे हो कुछ मिलेगा, क्योंकि इंसान सोच नहीं सकता है क्या हो रहा है। अरे चलो एक दिन भूखे मारोगे, थोड़ी पानी तो मिलेगा ना, अच्छा दूसरा ये नहीं होगा, अच्छा ये, तो कोई सोच नहीं सकता है कब क्या होगा। तो लिहाजा एक फतवा 2 मिनट के लिए कहेंगे यार कुछ भी खाओ, सोर, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल आए थे जब स्कॉलर देते थे, वो क्या कहते थे, खंजीर को भी नहीं, वो एग्जाम्पल देते थे, क्योंकि खंजीर क्या है, मगर कंपेयर क्या कर रहे थे इसको, मगर आज तक किसने नहीं सोचा था भाई को भी खा सकते हैं, जो आपको शौक लगा था।
तो अगर उस वक्त फतवा देना होगा खंजीर तो खा सकते हैं, अगर बेहतर होगा खंजीर एक साइड में है और मेरा भाई मर गया है, ऑप्शन मेरे पास दो है, आप समझ गए, खंजीर को खाऊं ये खाऊं, आप समझ गए, तो मेरा मतलब है वो कोई सोचेगा नहीं कि पागल हो खंजीर को खाओ, भाई को क्यों खाओगे, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं क्या खाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी हालत होगी। हम गेस कर सकते हैं, हालांकि मुझे जहन में कभी नहीं आया कि कोई खंजीर को खाएगा, क्योंकि जब एक जानवर अवेलेबल है दूसरे तो होंगे जंगल में, आप समझ गए। तो उलमा देते थे एक्सट्रीम, खंजीर उसको खा सकते हो अगर सिचुएशन, बट मुझे नहीं लगता आज तक किसी को ये हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जहां खंजीर एक जानवर अवेलेबल है वहां दूसरे होंगे, कुछ ना कुछ होगा, आप समझ गए। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुछ भी जब भी कुछ होगा, अब किसने सोचा होगा भाई को खा सकते हैं, ये सिचुएशन हुई और लाई में आपको दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया पहला वाला फतवा था भाई को बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, बोल सकता था क्योंकि सोच नहीं सकता है, मगर फिर मैं कहूंगा हाँ आप खा सकते हो। तो इसका मतलब पहला वाला फतवा क्या था, जनरल, मगर फिर मैंने देखा ये आया इसी में, इसी प्लेन में क्रैश हुआ था, आया, मैंने कहा नहीं जायज है। तो इसका मतलब मेरा ही फतवा फाइनेंस हराम है, मेरा ही फतवा आप कर सकते हो, यही तो है आयत। आप इसको कभी मत ले, उसको कहा गया हलाल है आपको भी हलाल है, वो खुद काउंसिल के पास जाओ, कहो क्या मैं कर सकता हूं, यही प्रॉब्लम है। उम्मीद है फायदा हो रहा है, ये समझना जरूरी है। हलाल हराम हम स्टूडेंट को बाद में समझेंगे,